explaining in the whole video, but first we'll understand by some brief. So as you know that nationalism in India is basically a journey of Mahatma Gandhi, that how he had helped us to gaining the independence of India from Britishers by very non-violent way, and not very much becoming so aggressive. That's why these are some pictures related to it. Now this is important, so we'll discuss this in three parts mean three videos: coming back of Gandhiji, non-cooperation movement, and civil disobedience movement. As this chapter is too long, so I can't finish this in one video, so I'll come up with this in three videos. First is coming back of Gandhiji, non-cooperation movement, and civil disobedience movement. So now coming back of Gandhiji. Now question arises that what is nationalism? Nationalism is love and respect of a nation and superior from other countries. Love and respect of our nation, that देश के लिए प्यार, हमारी धरती, I should say that हमारी country के लिए प्यार, हमारी country को respect, इसे कहते हैं nationalism. So this is the introduction of it. Now, modern nationalism in Europe developed with formation of national states. In India, growth of nationalism is initially connected to anti-colonial movement. The First World War 1914 created a new economic and political situation worldwide. After World War, the India faced acute food shortage along with influenza pandemic. So as you know that you had studied this about in class 8th, and in class 8th you have studied that East India Company had come to India to gain his power. So East India Company come slowly in India and then settled. सो अब जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल है चल रहा था तब, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 से लेकर 1918 तक हुई. डेट्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेट्स को लिखते रहिएगा हर जगह पे, कोई भी कॉपी में, कोई भी उस जगह. बाय द वे मैंने ऐसे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नोट्स कुछ डाले हैं, दैट विल हेल्प यू. सो कमिंग बैक टू इट, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी for rule upon us and gaining power from us. So अब 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ था स्टार्ट, 1918 तक चला था जैसे मैंने अभी बताया. तो 1914 में उनको बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए थे for the world war. So that's why they started taking the people from our country. Okay, and at that same time India faced acute food shortage along with influenza pandemic. That means कि इन्फ्लुएंजा एक एपिडेमिक आया था, एक पैंडमिक आया था उस टाइम पे, जैसे इस टाइम पे कोरोना पैंडमिक है. दैट्स वाई उसी टाइम पे भी एक इन्फ्लुएंजा पैंडमिक आया होगा, जिसकी वजह से इंडिया को शॉर्टेज ऑफ फूड सफ़र करना पड़ा. ऊपर से ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर आके रूल करना शुरू कर दिया. सो इतना ज़्यादा वो हो गया इनका, मतलब इकोनॉमिक इतनी गिर गई कि इतना सब कुछ होने लगा. सो दिस इज़ द बेसिकली इंट्रोडक्शन of this. I had given you a picture in this that nationalism, what is nationalism means, and this is whole the information about this. Okay, next, yeah. Now अब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे. अब वो साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे, क्यों गए थे, वो इसमें चैप्टर में नहीं है, बट ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन यू. वो साउथ अफ्रीका इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे फ्रीडम दिलवानी थी. वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था अपार्थाइड के लिए, जैसे आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पॉल साइंस में कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसलिए वो वहाँ गए थे उनको फ्रीडम दिलाने. वहाँ से वो 1915 में आए थे एंड उन्होंने आके देखा कि ब्रिटिशर्स का रूल हम पे चल रहा है. दैट्स वाई दे स्टार्टेड डूइंग सत्याग्रह. अब सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह इस सत्य का आग्रह. दैट इज़ emphasize the protest based on truth and non-violence without becoming any violent to each other for anything. We'll do for truth. That means कि हमें एकदम
बहुत ही शांति से जो भी चीज़ों को है वो समझना है। ये नहीं कि हमें लड़ाई करनी है उनसे, हमें एकदम ही प्यार से बैठ के सलाह मशवरा करके अच्छे से उसको समझना है सिचुएशन को। इसलिए हम इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम ट्रुथ के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सत्याग्रह से ही पता चल रहा है कि सत्य का आग्रह, आग्रह मीन्स डिवोशन फॉर ट्रुथ, कि ट्रुथ की मांग करना कि हम सत्य से ही आपको करेंगे। जैसे गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया था। अब गांधी जी आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन चंपारण, बिहार, खेड़ा, गुजरात एंड अहमदाबाद, गुजरात। अब यू आर बी सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है यार, बीच में कभी भी कुछ आ जाता है। सो दिस इज़ नथिंग कि चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1916 वॉज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। नोट कर लेना प्लीज़, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि डेट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो जस्ट राइट इन ऑन वन नोटबुक दैट पहले तो गांधी जी कब वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ, 1914 to 1918। देन महात्मा गांधी कब आए, 1915। देन चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1916। एंड आगे भी डेट्स आएंगे तो मैं भी वो आपको बताऊंगी। फिर चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1916 was the first satyagraha movement. It was a farmers' uprising that took place in Champaran district of Bihar, India during the British colonial period. The farmers were protesting against having grow indigo with barely any payment for it. That means कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का है एंड उसके अंदर गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह शुरू किया जो अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स जो फार्मर्स होते हैं उनको फोर्स कर रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए और उनको कोई पेमेंट भी नहीं दे रहे थे। इंडिगो ग्रो करने के लिए क्यों कह रहे थे ये तो इसमें नहीं है, बट ऑल्दो आई टेल यू, इंडिगो ग्रो करने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। वो अपनी कंट्री में जाके हाई अमाउंट पे बेचते थे एंड फार्मर्स को कुछ नहीं देते थे, तो उनसे तो उनको प्रॉफिट हुआ। दैट्स वाई वो इंडिगो ग्रो करने के लिए उनको फोर्स करते थे। सेकेंड सत्याग्रह इज़ खेड़ा सत्याग्रह फॉर पीजेंट्स हु वर अफेक्टेड बाय प्लेग एपिडेमिक। सो अभी हमने पीछे बात करी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आई थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेग एपिडेमिक एंड क्रॉप फेलियर। अब क्रॉप फेल हो चुकी थी, प्लेग एपिडेमिक आ गया ऊपर से उन्हें टैक्स पे करना है। तो अब ये सब सिचुएशंस को देख के एक बेचारा फार्मर क्या क्या करेगा, कैसे करेगा अपनी लाइवलीहुड को भी मैनेज करना एंड ऊपर से क्रॉप फेलियर भी, फिर प्लेग एपिडेमिक भी एंड देन हाई पे रेंट भी करना उनको, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो सत्याग्रह गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया खेड़ा फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा हु were affected by plague epidemic and crop failure and hence were unable to pay the revenue and were demanding to relax the revenue from this. ये सत्याग्रह कब हुआ था? इट वॉज ऑर्गेनाइज इन 1917। फिर से मैं कह रही हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स लिख लीजिएगा हर जगह पे। ओके, नेक्स्ट अहमदाबाद सत्याग्रह। Ahmedabad Satyagraha was launched in 1918. Again, data important, लिख लो. It was launched for cotton mill workers against British atrocities. अब कॉटन मिल वर्कर्स को वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे यही सेम चीज़ के लिए कि हाई रेवेन्यू, हाई पे टैक्स। अब इन सबको वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए एक सत्याग्रह और ऑर्गेनाइज किया था 1918 में। सो अब मैं ब्रीफ दे देती हूँ इन तीनों का, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि गांधी जी ने 3 सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। पहला वॉज चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1916, सेकेंड वॉज खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1917 एंड अहमदाबाद, एंड थर्ड अहमदाबाद सत्याग्रह फॉर 1918। चंपारण में उन्होंने ही टुक ऑफ बिहार, फार्मर्स ऑफ बिहार who were forced to grow indigo. For Kheda peasants, he took over the plague epidemic and crop failure to pay the tax. And in Ahmedabad, he had launched for cotton mill workers against British atrocities. I think आपको confusion नहीं होना चाहिए, होगा तो भी comment box में डाल दीजिए, I'll solve that. Okay? And जो भी होगी आपकी आप इसी वीक में डाल दीजिएगा, ताकि हाँ इसी वीक में डालती, क्योंकि नेक्स्ट वीक में अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तो उसके अंदर आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो आप इसी वीडियो में अपने सारे जो भी डाउट्स हैं वो इसी कमेंट बॉक्स में डाल देना प्लीज़। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपके पास नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट वीडियो आ सके। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर डाल देना। ओके,
अगर कुछ होगी तो, ऐसे नहीं कि डाल दी। फाइन। नाउ रॉयल एक्ट, ओके। अब रॉयल एक्ट क्या था? इट गेव ब्रिटिशर्स enormous powers who can arrest anyone for 2 years without any trial or any warrant. ये ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गई थी। उन्होंने ये सोचा कि चलो अब हम लोगों को ना अरेस्ट करेंगे 2 साल के लिए विदाउट एनी वारंट और ट्रायल। वारंट एंड ट्रायल मीन्स विदाउट एनी प्रूफ। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम इसे क्यों अरेस्ट करें, फिर भी हम इसे अरेस्ट करेंगे। नाउ ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। रॉयल एक्ट allows the British to jail protesters without a trial for up to 2 years. Many protesters spring up in Punjab, a highly concentrated area for India veterans from war life here. दिस मीन्स कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई हैं इंडिया की, मतलब इंडिया का सिर्फ एक अकेला पंजाब है जिसके अंदर मुश्किलें आई हैं। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि कैसे आई हैं। अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि आगे एक मेन, बहुत ही ज़्यादा मेन इस चैप्टर का एक पॉइंट आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा यहाँ क्यों लिखा है। नाउ गांधी जी स्टार्टेड रॉयल एक्ट सत्याग्रह अगेंस्ट दिस। अब गांधी जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मतलब बिना किसी वारंट के 2 साल के लिए किसी को भी जेल के अंदर हाउ दे कैन, मतलब कैसे डाल सकते हैं, पावर नहीं है उनके पास। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट शुरू किया रॉयल एक्ट सत्याग्रह ऑफ 1990। डेट याद रखना, लिख लो। अब इसके अंदर क्या क्या था? देयर वर हड़ताल्स, प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एवरीवेयर। हड़ताल्स थी हर जगह, प्रोसेशंस थे, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, और वर्कर्स हर जगह पे चले गए थे, स्ट्राइक्स पे चले गए थे। रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड, रैली से उन्होंने खूब दिखाया, नारे लगाए। शॉप्स वर क्लोज्ड, ताकि कोई ब्रिटिशर्स कोई भी सामान ना ले सके, या फिर हम ब्रिटिशर्स का कोई सामान ना लें। लोकल लीडर्स वर पिक्टेड फ्रॉम अमृतसर, लोकल लीडर्स को ले लिया कि चलो हम उनको बिठा देंगे ताकि वो लोग कोई भी डिसीजन ले लेंगे। गांधी जी को दिल्ली में आने से बंद कर दिया। नाउ दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस रॉयल एक्ट सत्याग्रह। ओके, जनरल डायर टुक ओवर द कमांड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कहीं भी नोट करो, यहाँ सबसे पहले तो ये नोट करो कि जनरल डायर टुक ओवर द कमांड, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे ही रिलेटेड आएगा। सो जनरल डायर टुक ओवर द कमांड एंड मार्शल लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में ये था कि कोई भी किसी भी स्टेट में ऐसे नहीं घुसा चला जाएगा कि मन करा तो हम दूसरी स्टेट में चले जाएँ। ही हैज़ टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू एंटर दैट स्टेट। अब ये बात पंजाब में नहीं पता थी, दे डिडंट नो अबाउट दिस ऑल दैट मार्शल लॉ भी इम्प्लीमेंट हुआ है, जनरल डायर आया है, तो मार्शल लॉ का तो उन्हें नहीं पता था। अब उन्होंने सोचा कि हम बैसाखी का फाउंडेशन आता है तो हम 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सेलिब्रेट करने चाहेंगे। कुछ लोग तो इसके लिए थे, सम पीपल वर फॉर दिस एंड सम पीपल फॉर the two people that is डॉक्टर सत्यपाल एंड सफुद्दीन खिचलू। इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर्स में ले रखा था, अपने अंडर ले रखा था, मतलब अपने अंडर अरेस्ट कर रखा था। इसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया एंड दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर ऑन जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी। कुछ लोग तो इसलिए आए थे बैसाखी का सेलिब्रेट करने, कुछ लोग आए थे बिकॉज ऑफ देयर बोथ। सो अब जलियांवाला बाग महस्किया में हुआ क्या था? ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे a crowd of villagers who had to come Amritsar to attend the fair gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh. Being from outside the city, they were unaware of martial law. That is very important point. मैंने आपको पहले भी बताई ये बात कि उन लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसीलिए वो बिना जाने बिना ही अंदर एंट्री ले लिए। एंड आगे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्श थिंग हुई, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। Daya entered the area, blocked the exit ports and opened fire on the crowd, killing hundreds. This point means कि डायर, जनरल डायर अंदर आया, एक ही एग्ज़िट गेट था, उसको बंद किया, अपनी आर्मी को कह दिया कि ओपन फायर मीन्स खुले आम गोलियां मारो लोगों को, कुछ भी करो पर उनको करो। अब ये क्यों, इसका रीज़न उन्होंने पूछा था, उन्होंने दिया भी है, आगे वील डिस्कस। अब ये उन्होंने ये जब करा तो
किलिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स, मतलब इतने लाखों की तादाद में वहाँ पे इकट्ठा हुए थे लोग, एंड उनको गोलियाँ, मासूम बच्चों को, इनोसेंट पीपल्स, इनोसेंट वुमेन्स, मेंस, किड्स, ऑल वर किल्ड. कुछ लोग तो एक कुआं था वहाँ, उसके अंदर गिर के ही मर गए थे, एंड कुछ लोग वर ड्यू टू दिस ओपन फायर. एंड यहाँ तक कि आज भी हम देख सकते हैं जलियांवाला बाग के वॉल्स पे उस गोलियों के निशान, बुलेट्स के निशान वी कैन सी ऑन द जलियांवाला बाग. नाउ अब इम्पैक्ट तो कुछ होगा ही इसका, क्योंकि इतना बुरा काम किया है तो क्यों ही इम्पैक्ट. एक सेकेंड, सॉरी, मुझे ये बताना था आपको, लास्ट पॉइंट रह गया. या सो हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर. अब ब्रिटिशर्स ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, मतलब कोई रीज़न तो था नहीं, इट्स ओके, हमें कोई डर तो लगता नहीं है उनसे, तो ऐसा क्यों किया. तो ही आंसर्ड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑल. दैट मीन्स कि उनके मन में हमें डर बिठाना था. वो तो मन चाहे जो करे, मन में आए वो कहें, ऐसे कर रहे हैं और हम उन्हें कुछ ना करें. तो इसलिए मुझे उनके मन में डर बिठाना था, उनको डराना था, कि उनके अंदर मॉरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना था कि वो अब ऐसा आगे से ना करें, ताकि वरना उनके साथ भी ऐसा ही होगा अगर वो ऐसा करेंगे तो. दैट्स वाई ही डू दिस एंड he declared this reason for it. impact क्या हुआ, impact भी बहुत ज़्यादा ही हुआ था, extreme. So impact of Jallianwala Bagh was कि as news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets. Many North Indian towns, there were strikes, clashes with police and attacks on the government buildings. अब लोगों को गुस्सा आया कि ये क्या मतलब होता है, अपने मन में आओगे वो करोगे. तो दैट्स वाई उन्होंने स्ट्राइक्स की, क्लैशेस किए, पुलिस के ऊपर अटैक्स किए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक्स की, ब्रिटिशर्स एट्रॉसिटीज़ पर अटैक्स किए, एंड हर जगह ही वायलेंस स्प्रेड हो गया. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. उन गवर्नमेंट को भी गुस्सा आया कि व्हाट इज़ दिस न्यूसेंस, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस दे आर हैपनिंग विद अस. उन्होंने अपना रीज़न डिक्लेयर किया था, फिर भी ये नहीं समझ रहे, तो फाइन, वील टेक द रिप्रेशन. अब उन्होंने रिप्रेशन में क्या किया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया पीपल को, टेरराइज़ किया, और उनको फोर्स किया कि उनको अपना नोज़ रब करना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर, क्रॉल करना पड़ेगा स्ट्रीट्स पे, सलाम करना पड़ेगा टू ऑल साहिब्स, एंड पीपल वर फ्लॉग्ड फ्रॉम एंड वर बॉम्ब्ड. दैट मीन्स कि पीपल को तो फ्लॉग कर दिया था, भगा दिया था, और विलेजेस को बॉम्ब करे गए थे, विलेजेस को के ऊपर बम मारे गए थे ताकि ये फिर ना करें. अब गांधी जी ने ये सब देखा, इसको देखा कि इतना वायलेंस हो गया इस सत्याग्रह की वजह से. नो, आई विल नॉट डू दिस, क्योंकि उनका तो था कि सत्याग्रह इज़ बेसिकली नॉन वायलेंस, इट्स बेसिकली for the truth. We need to have the truth, not the violence. So seeing this, महात्मा गांधी call of the movement, उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले I'll prepare the सत्याग्रहीज कि नहीं वो ऐसा ना करें, और मैं फिर ही कोई मूवमेंट शुरू करूँगा, फिर ही कोई सत्याग्रह शुरू करूँगा. Next is these are some pictures for it, that जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, कैसे ये लोग मार रहे हैं, कैसे बिल्डिंग्स हैं, लोग हैं, एंड ही इज़ द जनरल डायर. सी कितना क्रूएल है. ओके फाइन. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैंने आपको सब कुछ समझा दिया. आई विल रिपीट अगेन, मैं ब्रीफ दे देती हूँ अभी. सो पहले हमने डिस्कस क्या किया था, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से. 5 मिनट्स है, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखो. चलो, आई एम ऑल्सो वेटिंग. लिख दिया सबने? ओके फाइन, रहने तो नहीं लिखा, इट्स ओके. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ, नॉट द होल. ओके, होल के लिए तो आप बैग भी जा सकते हो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, दैट्स नॉट बिग प्रॉब्लम. सो मैं ब्रीफ दे देती हूँ आपको यहाँ पे. ब्रीफ ऑफ दिस दैट कि हमने शुरुआत में पढ़ा नेशनलिज्म क्या होता है. नेशनलिज्म होता है लव फॉर आवर कंट्री, रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री,
सुपीरियर फॉर अदर कंट्रीज़। सेकेंड हमने पढ़ा कि गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, 1914 to 1918। देख लो आपने ये सब डेट लिखनी है ना, ये उल्टी पुल्टी तो नहीं लिख दी। तो यही डेट्स मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा रही हूँ, मैं अब दोबारा भी रिवाइज़ कराऊंगी, अभी फिर करा रही हूँ। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1915 गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। क्यों आए थे, साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका में फ्रीडम दिलानी थी अगेंस्ट अपार्थाइड। ओके, नेक्स्ट सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह 1916। उन्होंने वहाँ पे जो पीजेंट्स के लिए किया था, जो फोर्स हो रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट वाज सत्याग्रह वाज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में था कि उनको जो प्लेग एपिडेमिक एंड क्रॉप फेलियर से वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, बट उनको तो फोर्स किया जाता है कि आपको टैक्स पे करना है। थर्ड वाज 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, विच वाज अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। ओके, फिफ्थ एंड नेक्स्ट वाज 1919 ऑफ रॉयल एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। एंड महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया था उसके अगेंस्ट? रॉयल एक्ट सत्याग्रह। उसमें क्या हुआ था? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, 1919 में ही हुई थी। दैट वाज ऑफ 13 अप्रैल 1919। प्लीज़ डेट्स लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ओके, so in the next video we'll be studying the second topic, that is non cooperation movement। या मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी दूंगी आपको यहाँ का, बट